ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Good morning, children. Welcome to E-Samveda class. I will once again welcome you to the E-Samveda classes. Children, before going to start the class, I would like to tell you, be prepared with your learning material. Okay, children? So, today we are going to learn from class 4th, subject second language English, unit art, under that a unique painting part 2 of 3. बच्चों, मैंने जैसा पिछली क्लास में बताया था कि हम आपकी दर्सी किताब इंग्लिश के सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज यूनिट आर्ट उसमें से क्या है, हम ये यूनिक पेंटिंग का दूसरा हिस्सा सीखने जा रहे हैं. सो बी प्रिपेयर विथ योर लर्निंग मटेरियल लाइक टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर. बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपनी दर्सी किताब, नोटबुक, पेंसिल और इरेजर का बंदोबस्त कर लीजिए. ओके चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू सी यू योर प्रीवियस क्लास होमवर्क. ओके चिल्ड्रन, आपने अपना होमवर्क किया होगा. व्हाट इज द क्वेश्चन? प्लीज चेक द आंसर्स व्हाट यू हैव रिटन इन द लास्ट क्लास फ्रॉम द पेज नंबर 125 and 126. Write the names of the states related to the classical dance forms. Pictures and names of the capital cities have given us clues. बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डांस फॉर्म्स के बारे में सीखा था, उनके नाम के बारे में, उनके स्टेट्स के बारे में और उनके कैपिटल सिटी के बारे में भी सीखा था. See here 6 pictures have been given. Under that 6 different dance forms are there. You have to write the names of the states there. So which is the first state here and which is the second, third, fourth, fifth and sixth. I hope you have written the answer. Please tell me the answers. Okay, very good. Okay, yes, first is Kerala. The capital city is Thiruvananthapuram and second one is Hyderabad and the answer is Andhra Pradesh. Okay, very good children. Please tell the third answer. Yes, what is the third answer? Manipur. The capital city is Imphal. And the fourth one, what is the answer there? Yes, Punjab. And the capital city is Chandigarh. And the fifth one, answer Tamil Nadu. And the capital city is Chennai. And the last one, Uttar Pradesh is the answer. And the Lucknow is the capital city. Okay children, you have written the correct answer. Those who have not written, please write down these answers. First is Kerala, second one is Andhra Pradesh, third one is Manipur, fourth one is Punjab, fifth one is Tamil Nadu and the last and the sixth one is Uttar Pradesh. Okay children, please write down in your notebook. Let's move to the next segment. Children, I have given you 3 questions in the previous class homework. The question is, what is painting? And the answer is, painting is a skill or activity of making a picture or putting paint on a wall. पेंटिंग क्या है बच्चों? वो एक हुनर है, एक सरगर्मी है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, रंग भरते हैं, तस्वीर में रंग भरते हैं, यहाँ पर दीवारों पर रंग भरते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज, हु वाज अकबर एंड बीरबल? अकबर वाज ए ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर. अकबर क्या थे? एक बेहतरीन बादशाह थे मुगल एम्पायर के. एंड बीरबल नोन एज ए वॉइसफुल एंड ए विट्टी मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर. और बीरबल कौन थे? अकबर के दरबार के एक चालाक मंत्री थे. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव written the homework right. Those who are not written, please write down these answers. Okay children,
Now we will move to the next. So I would like to revise the last class. So children, what was the task given for the Birbal? Yes, who is going to tell the answer and who is going to read the answer here? Yes, okay, read it. Yes, answers have been written. बच्चों मैं पिछली क्लास का आपसे यादा कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप क्या है मुझे आंसर देने की कोशिश कीजिए. यस, टेल मी व्हाट वाज द टास्क गिवन. बीरबल को क्या काम दिया गया था? पहला सवाल है टू मेक ए पेंटिंग यूजिंग हिज ओन इमेजिनेशन. वेरी गुड. क्या है बच्चों? बीरबल को पेंटिंग बनाने का काम दिया गया था अपने तसव्वुर से, अपने ख्याल से. सीधा को सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ बीरबल बाय हियरिंग दिस. बीरबल को इस बात सुनने के बाद क्या रिप्लाई था? बीरबल ने उसका क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया? आंसर, बट हुजूर आई एम ए मिनिस्टर, हाउ कैन आई पॉसिबली पेंट. बीरबल ने क्या कहा बच्चों? मैं एक आपके दरबार का महल का एक मिनिस्टर हूँ, एक मंत्री हूँ, मैं कैसे पेंट कर सकता हूँ. अकबर बिकेम एंग्री एंड व्हाट ही सेड टू बीरबल. अकबर गुस्सा हो गए और उन्होंने बीरबल से क्या कहा? अकबर सेड, इफ आई डोंट गेट ए गुड पेंटिंग इन ए वीक यू शैल बी सेंट अवे फ्रॉम दिस कंट्री. अकबर ने कहा अगर एक हफ्ते के अंदर मुझे अच्छी और खूबसूरत पेंटिंग नहीं मिली, मैं क्या कर दूंगा? तुम्हें इस कंट्री से, इस मुल्क से बाहर निकाल फेंकूंगा. एंड द लास्ट, हु वर जेलस ऑफ बीरबल. बीरबल से कौन जल रहे थे बच्चों? बताओ. यस, वेरी गुड, दरबारी जल रहे थे. उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? कोर्टियर्स. वेरी गुड. सम ऑफ द कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ बीरबल. बीरबल से कोर्टियर्स जल रहे थे. चिल्ड्रन, I am giving you 2 minutes of time to copy down these question and answers. Please write down in your notebook. बच्चों, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, दर्ज कर लीजिए. Okay children, before going to start the class, I would like to show you the video of what happens for the best. जो होता है अच्छे के लिए होता है. इस वीडियो को आप देखें. ओके चिल्ड्रन. जो होता है भले के लिए होता है. एक दिन आम काटते समय बादशाह की उंगली कट गई. जहांपना, जो होता है भले के लिए ही होता है. क्या मेरी उंगली कट गई? मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है? सैनिकों, इसे कारागृह में डाल दो. ठीक है, जो होता है भले के लिए ही होता है. दूसरे दिन बादशाह शिकार के लिए गए और वहां जंगल में रास्ता भूल गए. रास्ता खोजते हुए गलती से उन्होंने एक क्रूर आदिवासी इलाके में प्रवेश किया. वहां के आदिवासियों ने बादशाह को बंदी बना लिया. उसे लेकर आओ, हम देवता को इसकी बलि चढ़ाएंगे. सभी ने मिलकर बादशाह को पकड़कर एक खंबे से बांध दिया. अरे रुको, ये नहीं चलेगा. इसकी तो उंगली कटी हुई है. हमारे ईश्वर को इस प्रकार का बलि मंजूर नहीं होगा. जाने दो, उसे छोड़ दो. अब बादशाह की आंखें खुल गई. बीरबल ने जो भी कहा था ठीक कहा था. अपने महल लौटते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को कैद से छुड़ाने की आज्ञा दी. बीरबल, उस दिन जब तुम्हें कारागृह में डाल दिया गया, तब भी तुमने यही कहा था कि जो होता है भले के लिए होता है. ये कैसे? जहांपना, अगर आप मुझे कारागृह में नहीं डालते तो मैं आपके साथ होता और फिर आदिवासियों ने आपको छोड़कर मुझे बलि चढ़ाया होता. तुम्हारा कहना सही है बीरबल, जो होता है भले के लिए ही होता है. Okay children, how was the video? Did you enjoy the video? Yes, you enjoyed the video very well, very good. बच्चों, कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, इस वीडियो में क्या है? जो होता है अच्छे के लिए होता है. बीरबल ने अकबर को क्या है? एक सबक सिखाया. हाँ, अकबर ने एक सबक सीखा इसमें. So let's move to the next segment.
children, now I am going to read the lesson. So don't open the book, listen the text with your book closed. बच्चों आप अपनी दर्सी किताब को मत खोलिए, इसे बंद ही रहने दीजिए। पहले क्या है, आप मेरी बुलंद ख्वानी को सुनिए। लेसन ए यूनिक पेंटिंग। Clever Birbal had an idea. Next day, Birbal came to the court. He had covered frame with him. Akbar was happy to see Birbal. The king called him near and took the frame. When he opened the cover, the smile on his face changed to anger. Okay children, once again we will read the lesson. Now open your textbook on page number 119 and 120. बच्चों आप अपनी दर्सी किताब ओपन कीजिए और उसमें 119 से लेकर 120 तक का सबक मेरे साथ दोहराइए, रिपीट कीजिए। So let's read children with me. Lesson A, unique painting. Okay. Clever Birbal had an idea. Next day, Birbal came to the court. He had covered frame with him. Akbar was happy to see Birbal. The king called him near and took the frame. When he opened the cover, the smile on his face changed to anger. Okay children, so before going to explain the lesson, I would like to introduce some new words and their meanings to you. सबक को शुरू करने से पहले मैं सबक में आने वाले मुश्किल और नए अल्फाज को आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप पहली तस्वीर को देखिए, see the first image and the first word and its meaning. The first word is clever and the meaning is intelligent, and here also word written clever and the meaning is written in Urdu, होशियार और चालाक। बच्चों क्लेवर के माने हैं होशियार और चालाक। यहाँ पर एक जुमला भी दिया गया है, द क्लेवर बॉय थॉट ऑफ ए गुड आइडिया। चालाक बच्चे को एक शानदार ख्याल आया। तो क्लेवर के माने हैं चालाक और होशियार। दिस इज अवर फर्स्ट वर्ड and its meaning is intelligent. Okay children, let's move to the second word. Yes, see the second word here and the meaning written here. What is the second word children? Idea. Yes, and the meaning is concepts, thoughts, suggestion. उर्दू में बच्चों आइडिया के माने हैं ख्याल, आइडियाज के माने हैं ख्यालात, ख्यालात। ओके चिल्ड्रन, आइडिया मीन्स ख्याल, कुछ भी एक प्लान करना। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या है, हमें कुछ अगर कोई काम करना है तो हम क्या करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि क्यों कैसा करना है, तो इसे क्या करते हैं, ख्याल आना, कॉन्सेप्ट आना। सी द नेक्स्ट एंड द थर्ड वर्ड कोर्ट एंड द मीनिंग इज द कोर्टियर्स एंड हाउस होल्ड ऑफ ए सॉवरेन आर ए बिल्डिंग फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। सी दिस इमेज, इट इज द इमेज ऑफ ए किंग्स कोर्ट। बच्चों यहाँ पर क्या है, राजा का दरबार है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। या फिर हमें गवर्नमेंट के कोर्ट को भी हमने देखा है, वहाँ पर हमें इंसाफ मिलता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। सीधा नेक्स्ट एंड द फोर्थ इमेज चिल्ड्रन, कवर्ड। व्हाट इज द वर्ड, कवर्ड, एंड द मीनिंग इज पुट समथिंग ऑन टॉप ऑफ or in front of something. See this image, it is covered. बच्चों इस तस्वीर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। एक फ्रेम है बच्चों, इसे एक बाइंडिंग शीट से ढक दिया गया है। इसके पीछे तस्वीर है या कुछ है, लेकिन इसे कवर किया गया है। जैसा हम अपने मुंह को क्या है अब फेस से कवर कर रहे हैं, फेस मास्क से कवर कर रहे हैं, वैसा ही यहाँ पर भी कवर
किया गया है, ढका हुआ। कवर के माने क्या है उर्दू में? ढका हुआ। सी द फिफ्थ इमेज एंड द फिफ्थ वर्ड फ्रेम. In the last image I told you, no, frame, and the meaning is a rigid structure that surrounds something such as picture, door or window pane, body. See the structure here. ढांचा कहते हैं बच्चों. फ्रेम के माने क्या है? ढांचे को कहते हैं, चाहे ये पिक्चर का हो, डोर का हो, या खिड़की का हो, या हमारी बॉडी का हो, जिस्म का. इसे क्या है? एक फ्रेम में ढांपा जाता है. इसे क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं. See the next and sixth image. What is the word written here? Near, and meaning at or to a short distance away, nearby. Near के माने हैं नजदीक. See this building? It is very near to me, and this is very far from the grass. बच्चों, इस तस्वीर में आपको दो तरह की बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं, घर नजर आ रहे हैं. इसमें क्या है? एक तस्वीर में नियर है और इसका जिद ऑपोजिट क्या है? फार है. नियर के माने नजदीक है, फार के माने क्या है बच्चों? दूर के है. ओके चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट मीनिंग एंड इमेज. चेंज. द वर्ड इज चेंज एंड द मीनिंग इज मेक समवन आर समथिंग डिफरेंट, अल्टर आर मॉडिफाई. द मीनिंग चेंज के माने क्या है? बदलना, बदल गया हुआ. सी हियर, सी दिस पिक्चर. यहाँ पर आधी तस्वीर में सूखा पड़ा है, झाड़ भी सूख गया है. और सी दिस इन द इमेज, यहाँ पर घास उगी हुई है. एंड द ट्री इज आल्सो हैव लीव्स. बच्चों, इस झाड़ को देखिए, इसमें यहाँ पर पत्ते झड़े हुए हैं, यहाँ पर पत्ते हैं, और यहाँ पर घास है, यहाँ पर घास नहीं है. तो मौसम जैसे बदलता है वैसा ही क्या है? चीज़ों भी बदल जाते हैं. तो चेंज के माने क्या है? बदला हुआ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट क्लास लेसन टू यू. बच्चों, मैं क्या है आपको पिछली क्लास का थोड़ा यादा करते हुए, पिछली क्लास में हमने जो जो सीखा वो आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ? रिपीट करना चाह रहा हूँ. चिल्ड्रन, इन द लास्ट क्लास अकबर called and told to Birbal to make a painting using his own imagination in it. To that Birbal hesitantly replied, Huzur, how can I make a painting? I am just a minister in your court. Akbar got angry and said, you have only 1 week of time to complete the given task. Otherwise, you may be thrown out of our kingdom. To this, courtiers became happy because they were jealous of बीरबल. तो क्या था बच्चों? लास्ट क्लास में अकबर बादशाह ने अपने दरबार में से किसे बुलाया? बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल इधर आओ और मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ, और इसमें अपने इमेजिनेशन, अपने ख्यालात का तुम इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए एक तस्वीर बनाओ या पेंटिंग बनाओ. बीरबल ने हिचकिचाते हुए कहा कि हुजूर, मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं तो आपके दरबार का एक मंत्री हूँ, एक मिनिस्टर हूँ. इस बात को सुनते हुए अकबर बादशाह को गुस्सा आ गया. क्यों गुस्सा आ गया? वो बादशाह थे, इसलिए उनको क्या है? गुस्सा आना जायज़ है. तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या कहा? बीरबल, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, 7 दिन का टाइम देता हूँ. उसमें तुम क्या करोगे? अपनी पेंटिंग को मुकम्मल करके मेरे पास लाओगे. अगर नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें इस कंट्री से, इस मुल्क से तुम्हें क्या कर दूंगा? बाहर निकाल दूंगा. इतना सुनते ही कोर्ट में के थोड़े दरबारी क्या हुए? बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि वो अकबर से हसद रखते, बीरबल से हसद रखते थे और जलसी रखते थे. ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव टू द टुडेज क्लास. आज हमने क्या पढ़ा उसका हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, देखेंगे. ओके चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज सेशन. बीरबल वाज वेरी क्लेवर, स्मार्ट एंड वाइज. बच्चों, बीरबल बहुत चालाक, समझदार और होशियार किस्म के आदमी थे. ही हैड एन आइडिया इन हिज माइंड. इनके दिमाग में एक आइडिया था. एक क्या, बहुत ज़्यादा आइडिया थे, लेकिन इस मर्तबा जो उनको काम दिया था उसके वास्ते भी इन्हें क्या मिल गया था? एक आइडिया मिल गया था. नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर. 7 दिन मुकम्मल होने के बाद बीरबल क्या हुए? राजा के
अकबर राजा के कोर्ट को आए। He had brought something with him that is fully covered frame. वो अपने साथ कुछ लाए थे जो फुल्ली कवर था, ढका हुआ था, एक फ्रेम में था। अकबर saw बीरबल and was happy to see him. अकबर ने जैसे बीरबल को देखा वो बहुत खुश हुए कि वो समझ गए कि बीरबल को मैंने जो काम दिया था वो काम उन्होंने कर लिया है और वो काम वो लेकर आ रहे हैं। Because he thought that बीरबल had brought a painting. जैसा मैंने बताया बच्चों, अकबर ने क्या सोचा, वो पेंटिंग लेकर आ रहे हैं। अकबर called बीरबल near him and himself took the frame, and when he opened the cover, the smile on his face changed to anger. अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और खुद ही वो फ्रेम उनके हाथों से लिया और खुद ही उन्होंने उस फ्रेम को ओपन किया, खोला बच्चों। और जैसे ही उस फ्रेम को, उसके अंदर उस चीज़ को देखा अकबर ने, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गुस्से में तब्दील हो गई। He became very angry by seeing the painting. बच्चों, अकबर ने उस पेंटिंग को देखकर बहुत गुस्सा हुए। क्या था उस पेंटिंग में बच्चों, हम ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। Now we will move to the next activity, that is grammar activity on page number 128. बच्चों, please open the textbook on page number 128. अपनी दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 128 ओपन कीजिए। यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे कि जोड़ लगाओ करना है, मैच द फॉलोइंग है। पहले में क्या है, ए में सवाल हैं, बी में आपको जवाब लिखना है और यहाँ पर आपको कॉलम में ब्रैकेट में आपको जवाब दिए गए हैं। इन्हीं जवाबात को आपको चुनकर क्या है यहाँ पर लिखना है, भर्ती करना है बच्चों। सीधा क्वेश्चन, हु आर वी, हम कौन हैं, हम कौन हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड each, choosing from the ones given in brackets and match the columns A and B. मैंने बोला ना बच्चों, A और B को मैच करना है, लेकिन आंसर को आपको ब्रैकेट में से चुनना है। What is there in the bracket? गिटारिस्ट, वायलिनिस्ट, सिंगर, डांसर, पेंटर, स्कल्प्टर, फोटोग्राफर। बच्चों, गिटारिस्ट के माने क्या हैं, जो गिटार बजाता है। वायलिनिस्ट के माने क्या है, जो वायलिन बजाता है। सिंगर के माने हैं जो सिंग करता है, गाना गाता है। डांसर के माने जो डांस करता है। पेंटर के माने जो पेंट करता है। स्कल्प्टर के माने मूर्तियों को बनाता है। और लास्ट फोटोग्राफर के माने आप भी जानते हैं कि फ़ोटो पकड़ना है, फ़ोटो पकड़ने वाले को फोटोग्राफर कहते हैं। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन हियर, ही dances, we paint pictures, they carve out stones, Sumati plays on the violin, I sing songs, Mohan plays on the guitar, you capture pictures in a camera। बच्चों, यहाँ पर 6 सवाल लिखे गए हैं, यहाँ पर इसके 6 जवाब हैं। आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, सुमति प्लेस ऑन द वायलिन। सुमति क्या कर रही है, वायलिन बजा रही है। मैंने पहले ही बताया ना बच्चों, वायलिनिस्ट के माने क्या है, जो वायलिन बजाता है। तो यहाँ पर आपको निशान बताया गया है, सुमति इज ए वायलिनिस्ट। एक आंसर आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया गया है। सुमति क्या है, वायलिनिस्ट है, वो क्या है, वायलिन बजाती है। सी, वी पेंट पिक्चर्स, you are a dash, he is a dash, we are dash, Mohan is a dash, they are dash, I am a dash। बच्चों, you have 2 or 3 minutes time to complete the grammar activity. Take the help of your elder brother and sisters or your parent and do the activity। बच्चों, आप अपने बड़ों का साथ लेकर आप क्या है, इसको पूरा करें। आपको 2 या 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, कम बैक। हैव यू रिटन द आंसर्स? हु इज गोइंग टू टेल द आंसर? व्हाट इज यू आर ए डैश हियर? यस, टेल मी। वेरी गुड। ओके,
You are a what? Yes. Then what is the second? He is a yes. Very good. Now we are going to see the answers here. See the answer. He dances. We paint pictures. They carve out stones. Sumati plays on the violin. I sing songs. Mohan plays on the guitar. You capture picture in a camera. These are the questions, children, and these are the answers. He is a dancer. There you have seen the picture. So he is a what? Dancer. We are painters. What they are? They are painters and they are sculptors. वो क्या हैं? Sculptors हैं, मूर्ति बनाने वाले हैं. And Sumati is a violinist. This answer has been written in the example, okay? And the fourth one is I am a singer. What am I? I am a singer. And the fifth one is Mohan is a guitarist. मोहन क्या करता है? गिटार बजाता है. And you are a photographer. आप क्या हैं? फोटोग्राफर हैं बोल के है. The answer is he is a dancer, we are painters, they are sculptors, Sumati is a violinist, I am a singer, Mohan is a guitarist, you are a photographer. Now children, those who have not written, write down the answers. I am giving you 1 minute of time to write down the answers in your notebook or in the textbook. Okay children, now I am going to show you the images. He is a dancer. बच्चों dancer देखिए, ये क्या है? Dancer है, ये dance कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? Dancer. We are painters. This is our second answer बच्चों. These are painters. ये क्या कर रहे हैं? Paint कर रहे हैं. ये दो हैं, इसे क्या कहते हैं? We कहते हैं. We, हम painters हैं. They are sculptors. ये क्या है? मूर्ति बना रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? Sculptors कहते हैं. Sumati is a violinist. क्या है? सुमति वायलिन बजा रही है, तो वो क्या है? वायलिनिस्ट कहलाती है. आई एम ए सिंगर. ये बच्चा क्या है? सिंगर है, तो वो क्या करा अपने आप को? आई एम ए सिंगर. एंड मोहन इज ए गिटारिस्ट. यहाँ पर गिटार बजा रहा है बच्चा, तो क्या है? मोहन इज ए गिटारिस्ट. जो गिटार बजाता है उसे गिटारिस्ट कहते हैं. एंड सी द लास्ट इमेज. फोटोग्राफर. कैमरा है ना इसके हाथ में बच्चों, ये फोटो तस्वीर उतार रहा है, तो यू आर ए फोटोग्राफर. These are the answers with their images. Okay children, let's move to the next activity. Children, now I am going to finish my class, but before finishing the class, I would like to give you some homework. How can I forget to give you some homework? बच्चों मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको घर पर काम देने से? इससे ही क्या है, आप सीख सकते हैं. इसीलिए आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया जा रहा है. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स. प्रैक्टिस स्पीच. पेज नंबर 130 एंड 131. बच्चों आपकी दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 130 और 131 में क्या है? डायलॉग प्रैक्टिस का स्पीच एग्जाम्पल के साथ दिया गया है. और वहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल है, दो क्या है एक्टिविटीज़ है, आपको उसे पूरा करना है, उसे आपको लिखना है. लिखकर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है. कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक्स. आपको उन डायलॉगों को अपनी नोटबुक्स में लिखना है और उसे पिछली क्लास में क्या है? बताना है. लेट्स मेक ए कार्ड एक्टिविटी. पेज नंबर 131. बच्चों 131 की आपकी दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 131 में आपको एक कार्ड एक्टिविटी दी गई है, उसे आप मुकम्मल कीजिए. सो चिल्ड्रन, I am Shujatullah Khan, working at Government Urdu Higher Primary School, Matamari, from Raichur district. Okay children, we will meet in the next class. Hope you will write the homework. Thank you. Bye bye. अनुदिना